Hello and welcome to Diya Online Science Academy. Here you are with me for the third lecture of chapter 3, Current Electricity. In today's lecture, we will discuss the temperature dependence of resistance and resistivity. We will also look at the different types of resistors. Okay. So in that, carbon resistors will be discussed in detail. So let us begin with the topic of temperature dependence of resistance and resistivity. So what is resistance? That we have seen in the earlier lecture, and from that we know that the formula for resistance R equals to rho L by A, where rho is resistivity, right? For resistivity the formula was M by N E square tau and into L by A. So this would be the formula for resistance, where M is the mass of electron, N is number of free electrons per volume, per unit volume, E is the charge on an electron, and tau is the relaxation time. Relaxation time is the average time between two collisions. This was discussed in the previous lecture. L is the length of the conductor, and A is cross-sectional area, of that conductor, right? So on increasing the temperature, what happens to these parameters we will have to see. On increasing the temperature, whether mass is going to be changed or not, likewise we are going to discuss this. So which parameter will get changed if I increase the temperature? In case of different types of materials, if I take a conductor, if I take a metal, then the temperature dependence will be some other way. If I take a semiconductor, then also something else will be observed. If I take some insulator, then or some alloy, then also the scenario will be different. Okay, so we will have to take different types of matters, and accordingly we will see which parameter is going to be changed in which way, right? That will lead us to the temperature dependence. What that will lead us to the change, what type of change is observed in resistance as well as in resistivity. Okay, तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स कौन कौन से हैं वो एक लिख लेते हैं. टाइप्स ऑफ मैटर जिसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं. टाइप्स ऑफ मैटर हम लोग लेंगे सबसे पहले मेटल, then after we will discuss about the semiconductors, and then alloys. Okay, so in case of metals, for metals, if temperature is increased, what happens? Mass will be changed, a charge of electron will be same. Only these two parameters will be changed. Sorry, mass will remain same, charge on the electron will also remain same. Only N and tau is going to be changed. Let us look at the tau. So on increasing the temperature, first what happens कि सबसे पहले उनके जो oscillations है, बराबर, जो ions होंगे उनके oscillation about its mean position is going to be increased. Oscillations increases ions के और molecules के. तो ऑसिलेशन इंक्रीज होने पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को
बीच बीच में रास्ते में टकराना जो होगा आयंस के साथ, रुकावट जो आएगी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले ऑसिलेशन इतने थे तो आराम से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल पाता था। अब ऑसिलेशन इतने हो गए तो इलेक्ट्रॉन को बीच में कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा हो गए। कभी ये वाला आयन टकराएगा, कभी उसके ऊपर वाला आयन टकराएगा, बराबर। ऑसिलेशन जो है वो इंक्रीज हो गया, इसलिए स्पीड में भी होने लगेंगे। तो ऑसिलेशन इंक्रीज होने पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। ओके, सो टाउ डिक्रीज हुआ। टाउ डिक्रीज होने पर आर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, बराबर। वाई? आर इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस हैज टू गेट इंक्रीज्ड, राइट। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अल्टीमेटली रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। बट साइमल्टेनियसली व्हाट हैपन्स, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जो हीट एनर्जी प्रोवाइड हुई ना, वो हीट एनर्जी फ्री जो फाइनल ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो फ्री हो जाएंगे उसमें से, फाइनल ऑर्बिट में से। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो इंक्रीज होंगे, तो एन भी तो है वो चेंज होने वाला है। तो सेकेंड चीज क्या होगी कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेस, दिस implies free electrons increases, number of free electrons increases। तो फिर इससे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है आर, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, बिकॉज आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर एक टर्म हमें बताता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए, और टेम्परेचर इंक्रीज ही होने पर दूसरा टर्म हमें बताता है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज होना चाहिए। तो हमें कौन सा ट्रू मानना चाहिए? क्या टेम्परेचर ये इंक्रीज कर देगा उतना ही ये डिक्रीज करेगा, ऐसे होगा? मतलब कि वो कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा? तो अब इसमें सिग्निफिकेंस सिर्फ इसी का पाया जाएगा। This parameter will only be significant. Why? Because already जो conducting material होगा, metals होंगे, वो metals में already N जो है वो free electrons already उतने ज्यादा available होंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिले वो कोई ज्यादा नहीं होंगे, उतने ज्यादा नहीं होंगे, उनका नंबर उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा कि वो सिग्निफिकेंटली रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ जो अपना इम्पैक्ट है वो शो कर सके, बराबर। तो बट N इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू एग्जिस्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं n न्यू बोल दूं। न्यू जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी हमें मिल रहे हैं वो एग्जिस्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन से उतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए रेजिस्टेंस इंक्रीज होने, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज होगा इन केस ऑफ मेटल्स, राइट। सो इफ आई ड्रॉ अ चार्ट फॉर इट, देन द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। आर या तो फिर रेजिस्टिविटी, बराबर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ग्राफ कैसा बना? मेटल के लिए इंक्रीजिंग जो है वो ऐसे शो करता हुआ। फिर सेमीकंडक्टर्स, सेकेंड केस हम लोग लेते हैं फॉर सेमीकंडक्टर्स। फॉर सेमीकंडक्टर्स व्हाट हैपन्स? सेम चीज जो अभी यहाँ पर लिखी ना हमने कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो ये सब होगा। ऑसिलेशन इंक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज होगा, टाउ जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो यही रहने वाला है रेजिस्टेंस का, चाहे हम लोग मेटल ले रहे हैं या फिर
सेमीकंडक्टर्स ले रहे हैं, बराबर, बट इसमें ये पैरामीटर्स जो है उनका चेंज जो है वो अलग होगा मैटर के हिसाब से। सो टाउ जो है वो डिक्रीज होने वाला है और टाउ डिक्रीज होने पर आर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, बराबर। और सेकेंड चीज क्या होगी, सेम वे में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। बट हियर इन दिस केस सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसमें टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है वो खूब ज्यादा बढ़ेंगे, पहले जितने होंगे उससे बहुत ज्यादा, उनके वो कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होंगे ना वो बहुत जल्दी जल्दी टूटते जाएंगे और नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स जो है वो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसलिए इसका सिग्निफिकेंस जो है वो दिखेगा, ना कि इसका। इसकी कंपैरिजन से टाउ का जो सिग्निफिकेंस होगा उसके सिग्निफिकेंस से एन का सिग्निफिकेंस ज्यादा दिखेगा, राइट। सो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स as the temperature increases resistance decreases, इससे उल्टा होगा, बराबर। तो इसमें आप डिक्रीजिंग वाला जो ग्राफ है वो शो कर सकते हो, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों के लिए, राइट। और एलॉयज जो है वो एलॉयज के केस में क्या होगा, मिक्सचर, अलग अलग जो मेटल्स है उनका मिक्सचर अगर लिया तो निक्रोम, मैंगनीन, कंस्टंटन, तो इस केस में सिग्निफिकेंटली कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो यू कैन से दैट टेम्परेचर चाहे कितना भी इंक्रीज कर लिया ना, इसमें पॉइंट में फर्क आएगा। सपोज ये इनिशियली 1.01 था ना, तो अब कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया उसके बाद फिर वो 1.02 तक इसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हुआ, मतलब उसको ऑलमोस्ट हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, बराबर। तो ये एज टेम्परेचर इंक्रीज या तो डिक्रीज होगा, इससे इसके रेजिस्टेंस में या रेजिस्टिविटी में किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, बराबर। तो ये तीन ग्राफ जो है वो ग्राफ के ऊपर से भी आपको एमसीक्यूज जो है वो पूछे जा सकते हैं, या फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको फॉर्मूला के ऊपर से कैसी बनी तो वो शो करना हो, तो ये ग्राफिकली अगर बताए तो ग्राफिकली आप लोग ये तीन जो है इनके चेंजेस कैसे हैं, इनका डिफरेंस, बराबर, कंपैरिजन करने के लिए पूछे कि टेम्परेचर डिपेंडेंस अलग अलग मैटर के लिए कैसी कैसी है, तो आप लोग ग्राफिकली ऐसे या फिर फॉर्मूला के ऊपर से ऐसे आप प्रूव कर सकते हो, बराबर, एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो ये नोट कर लो। Now we have seen that temperature has a significant effect on the resistance, but how exactly the resistance will be on some particular increase of temperature, बराबर। पहले इतना टेम्परेचर था, अब इतना टेम्परेचर कुछ डेल्टा टी जितना इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस जो इनिशियली था उससे अब कितना चेंज हो जाएगा, वो अगर फाइंड करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो सपोज इनिशियली and finally some situation is like this for temperature and resistance. Let's say initially temperature T है और फिर T plus delta T जितना हो गया, और रेजिस्टेंस है वो R0 से फिर डेल्टा R जितना हमने चेंज किया। यहाँ पर स्मॉल चेंज अगर हम लोग ले रहे हैं तो dt ऐसे और dr ऐसे लिख दिया मैंने, बराबर। इनिशियल जो है उसके अंदर dt जितना हुआ, तो ये क्या हो गया T फाइनल एंड ये हो गया R फाइनल, राइट। नाउ दिस चेंज dr, चेंज इन रेजिस्टेंस, डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू इंक्रीज द टेम्परेचर और हाउ मच यू डिक्रीज द टेम्परेचर, बराबर। टेम्परेचर के चेंज के ऊपर ये डिपेंड करेगा। मोर ओवर इट डिपेंड्स अपॉन द
इनिशियल टेम्परेचर ऑल्सो, बराबर, शुरू का जितना टेम्परेचर था उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. सो कंबाइनली आई कैन राइट लाइक दिस दैट डी आर इज प्रोपोर्शनल टू R0 dt. This is proportionality symbol, right? And this is equals to alpha R0 dt. Don't get confused with these two. This is alpha and this is the symbol for proportional, बराबर. तो ये अल्फा है, अल्फा जो है उसका नाम क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, बराबर. इसके ऊपर से अगर इसका मैं यूनिट देखूं तो डी आर, आर क्या है, रेजिस्टेंस, ओम डिवाइडेड बाय आर. देखो यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू डी आर बाय R0 dt. ये होगा ओम के अंदर, डिनोमिनेटर में भी ओम, इंटू डिग्री सेल्सियस में सपोज के हमने चेंज लिया तो अल्फा का यूनिट क्या आ जाएगा, अल्फा का यूनिट डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स और फ़ारेनहीट इनवर्स, ये आ जाएगा अल्फा का यूनिट, राइट. तो अब यहाँ पर ये डी आर जो है उसकी जगह पर मैं फाइनल माइनस इनिशियल लिखूं, RF माइनस RI, एंड अल्फा R0 in place of dt I can write T final minus T initial. So RF minus RI equals to, RI मतलब ये R0 है अभी, बराबर ना, इनिशियल जो है उसको R0 बताया है. तो मैं R0 टर्म है उसको राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो R0 प्लस अल्फा R0 TF माइनस TI equals to R0 taken out as common 1 plus alpha TF minus TI, right. So final resistance will become R0 times into bracket 1 plus alpha TF minus TI. So it significantly depends upon how much is the change in temperature. जितना ज्यादा चेंज किया होगा टेम्परेचर का उतना ज्यादा ये RF फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो मिलेगा, और इनिशियल रेजिस्टेंस के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा, बराबर, जो हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ था, बराबर. और अल्फा, अल्फा जो है वो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, बराबर. तो फॉर कंडक्टर अल्फा विल बी पॉजिटिव, फॉर सेमीकंडक्टर्स alpha equals to negative, and for alloys alpha will be almost equals to 0. अभी हमने आगे जो ग्राफ देखे थे तीन, या टेम्परेचर डिपेंडेंस देखा फॉर्मूला के ऊपर से, उसको यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, ये अल्फा पॉजिटिव अल्फा नेगेटिव के ऊपर से. एक आपको इसके ऊपर से MCQ बन सकते हैं कि कोई एक मटेरियल दिया जिसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा वो आपको पूछा है. सो ऑब्वियसली इफ इट इज अल्फा इज पॉजिटिव देन द मटेरियल वुड बी अ कंडक्टिव मटेरियल और मेटल, राइट. इफ इट इज नेगेटिव देन you will obviously can predict that the material will be a semiconductor, or if it is 0 then it will be something from alloys, right. So suppose चलो alloys से start करते हैं. अल्फा इक्वल्स टू 0, तो ये मैंने 0 ले लिया, 0 लिया तो ये टर्म निकल गया, ओनली 1 बचा, तो R0 इंटू 1. सो RF इक्वल्स टू R0. सी TF TI में चाहे कितना भी फर्क कर लो, कितना भी इंक्रीज कर लो, कितना भी डिक्रीज कर लो, RF एंड R0 जो है वो सेम ही आने वाले हैं. अभी आगे हमने देखा था एलॉयज के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट, राइट. तो ये मिल गया यहाँ पर, इसके ऊपर से ही हमें. सेकेंडली कंडक्टर्स के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब R0 1 प्लस अल्फा TF माइनस TI. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये भी पॉजिटिव, तो 1 में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड होगी, पॉजिटिव वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो R0 मल्टीप्लाइड बाय सम पॉजिटिव नंबर, तो ये RF उतने टाइम्स हो जाएगा, बराबर, बढ़ेगा उतना. तो ऑब्वियसली हमने देखा था कंडक्टर के अंदर के
टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, वो हमें ये फॉर्मूला के ऊपर से मिलता है। सेम वे में आप सेमीकंडक्टर के लिए देख सकते हो कि ये नेगेटिव हो जाएगा तो R0 जो है वो डिक्रीज्ड दिखेगा, राइट। अभी इसी के ऊपर से मैं रेजिस्टेंस के लिए भी सेम फॉर्मूला लिख सकती हूँ, R इक्वल्स टू रॉ ला, राइट। सो in place of RF we will write raw final L by A equals to raw 0 L by A 1 plus alpha TF minus TI, right. Raw F equals to L by A will get cancelled, so raw F equals to raw 0 1 plus alpha TF minus TI, right. So this would be the formula for resistance. टेम्परेचर इतना दिया, इसमें से आपको कोई भी वैल्यू गिवन हो सकती है, शायद से टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है वो आपको दे देंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो गिवन होगा, और इनिशियल रेजिस्टेंस दे दिया तो फाइनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी आप फाइंड कर सकते हो, करेक्ट। अगर आप लोगों को ये वैल्यूज गिवन है, फाइनल एंड इनिशियल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों में से कोई गिवन है, टेम्परेचर डिफरेंस अगर गिवन है तो आप कोएफिशिएंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, या लाइकवाइज दिस एंड दिस गिवन है, ये गिवन है इनिशियल, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा वो फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली अप्लाई होगा, इसे फॉर्मूला याद रखो, और ये एमसीक्यूज जो है उसके लिए याद रखो, ये यूनिट भी अल्फा का जो है वो याद रखना जरूरी है, ओके। चलो ये नोट करो। Now let us look at the types of resistors. There will be two types. One will be wire bound. Types of resistors. ये दो टाइप्स है जो जनरली यूज होते हैं। फर्स्ट है वायर बाउंड रेजिस्टर्स। इसमें क्या होगा, एक वायर होगा और उसको बाइंड करके, मतलब एक कोई सिलेंडर के ऊपर ऐसे उसको रोल करके रखा होगा, उसके ऊपर बाइंड करके, बराबर। तो वायर बाउंड जो होगा वो रेजिस्टर्स, तो ये वायर जो होंगे वो वायर बने होंगे जनरली एलॉयज से। तो एलॉयज जो अभी लिखे थे वो मैंगनीज, टंगस्टन, निक्रोम जो है उनका मिक्सचर, जनरली alloys are formed into wire and bound on some base, उसके ऊपर कुछ रोल करके वाइंड करके रखा होगा, बराबर। वाइंडिंग of it on some base material, ठीक है। तो एलॉयज जो है वो रेजिस्टर्स, ये हमें कोई एक सर्किट है, वो सर्किट के अंदर अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देना है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होने देना है, तो हमें ऑब्वियसली एलॉयज जो है वही यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं है, बराबर। चाहे कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर लो, रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होने वाला, इसलिए एलॉयज जो है वो प्रिफर किए जाते हैं। तो हमेशा ये पर यूज नहीं होते। इसका रीजन क्या है कि इसकी एक लिमिट है। इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन इसकी है, ये वेरी स्मॉल वैल्यू के रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, बराबर। तो हमें हाई रेजिस्टेंस अगर चाहिए सर्किट के अंदर तो वो नहीं मिलेंगे, बराबर। तो उसके लिए क्या मिलेंगे? उसके लिए कार्बन रेजिस्टर्स। अल्टरनेट क्या बना, अगर हाई रेजिस्टेंस वाली सर्किट की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए बनाने पड़ेंगे कार्बन रेजिस्टर्स। कार्बन रेजिस्टर्स कैसे होंगे कि कार्बन लिया, उससे ऐसे सिलेंडर छोटा सा फॉर्म किया, उसके आजू बाजू कुछ कोटिंग कर दिया होगा, बराबर, और इधर से ऐसे वायर जो है वो निकाल लिया होगा, बराबर। कार्बन
बराबर, मतलब कि ग्रेफाइट प्लस रेजिन, ये यहां पर मिक्स किया होगा, वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे उसको सिलिंड्रिकल शेप देके बनाया होगा। फिर उसके ऊपर ऐसे इंसुलेटिंग होगा, इंसुलेशन होगा, इंसुलेशन किससे? प्लास्टिक कवर होगा या रबर कवर होगा, प्लास्टिक से जनरली होगा, बराबर। और ये फ्यू 1 ओम से अ फ्यू ओम से लेके अ फ्यू मेगा ओम तक की इसकी रेंज है, बराबर। अब ये इतने कॉम्पैक्ट होते हैं, इतने से छोटे, बराबर। ये आपके हाथ है, उससे ये इतनी जो लेंथ है ना, उतने छोटे रेजिस्टर्स होते हैं। अब वो रेजिस्टर मुझे एकदम कॉम्पैक्ट होगा तो सर्किट में लगाने में आसानी रहेगी, बट जब मुझे वो रेजिस्टर चूज करना होगा कि इतने रेजिस्टेंस वाला, तो उसके ऊपर लिखा हुआ भी तो होना चाहिए। खूब सारे आपको ऐसे पूरे हाथ में दे दिए काफी सारे रेजिस्टर्स, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए कि इतने रेजिस्टेंस वाला ये रेजिस्टर है। अब वो इतना पतला भी होगा कि आपको फिर उसके ऊपर प्रिंट करना, वो प्रिंट करके फिर रीड कर पाना। चलो प्रिंट भी कर लिया एक टाइम पे, फिर रीड भी तो करना पड़ेगा कि इसकी रेंज कितनी है, कितना रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करेगा, बराबर। तो उसके अल्टरनेट, उसका जो सॉल्यूशन निकाला कि कैसे ये हमें हम लोग रीड कर पाएंगे, उसके लिए एक कलर सिस्टम जो है वो डेवलप की। उस कलर सिस्टम का कुछ इंटरप्रिटेशन होगा कि ये कलर मतलब इतने रेजिस्टेंस वाला, ये कलर मतलब इतने रेजिस्टेंस वाला, बराबर। तो वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम हम देखते हैं कि कैसे होगा। वो सिस्टम में फर्स्ट जो इसमें ये रेजिस्टर जो होगा ना, वो रेजिस्टर के अंदर, रेजिस्टर के ऊपर ये जो कोटिंग है, वो कोटिंग के ऊपर यहाँ पर बैंड्स होंगे, कलर बैंड्स, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, बराबर। 3 या तो 4 ऐसे कलर बैंड किए होंगे। फिर ये जो फर्स्ट वाला बैंड होगा, वो फर्स्ट बैंड क्या शो करेगा? फर्स्ट कलर बैंड will show the tens place number. फिर सेकंड कलर बैंड है, वो यूनिट्स प्लेस नंबर इंटरप्रेट करेगा, बराबर। सेकंड नंबर के ऊपर से हमें पता चलेगा कि ये कलर है, येलो कलर है, तो येलो कलर के सामने कुछ टेबल में से देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर 2 येलो कलर, मतलब उसको हम लोग यूनिट्स प्लेस में पुट करेंगे। फिर जो ये थर्ड कलर होगा, वो थर्ड कलर बैंड ये दोनों नंबर से, टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस से एक नंबर बना होगा। जैसे यहाँ पर 2 मिला, इधर 3 मिला, तो 23 बना ना। उस 23 से मल्टीप्लीकेशन कुछ होगा, मल्टीप्लायर 10 रेस टू समथिंग x होगा। वो नंबर यहाँ पर थर्ड कलर बैंड से पता चलेगा, बराबर। और फोर्थ नंबर जो है, वो फोर्थ नंबर टॉलरेंस इंटरप्रेट करेगा। फोर्थ कलर बैंड टॉलरेंस प्लस और माइनस सम परसेंटेज, x%, ये इंटरप्रेट करेगा। तो आपका जो नंबर है वो कुछ ऐसे, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू टेंस प्लेस यूनिट्स प्लेस इनटू 10 रेज टू x प्लस और माइनस x%, इतना बनेगा, इतने ओम इसमें आंसर आएगा, राइट। तो अब हम लोग इतना आप लोग लिख लो, उसके बाद एक टेबल बनाते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से नंबर, कौन सा कलर मतलब कौन सा नंबर इंटरप्रेट करता है। चलो ये लिखो। चलो तो अभी मैंने ये टेबल बनाया है, कलर, नंबर, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस। कौन कौन से नंबर, कलर्स है जो प्रिंट किए हुए हो सकते हैं, तो उसमें से एक कलर हो सकता है ब्लैक। अगर ब्लैक है तो आपको नंबर समझना है 0। अगर थर्ड बैंड पे ऐसे था ना,
1 2 3 एंड 4। अगर थर्ड बैंड ऐसा है, फर्स्ट या सेकंड में ब्लैक हुआ तो आप टेंस प्लेस या तो यूनिट्स प्लेस में 0 पुट कर दोगे, बराबर। टेंस प्लेस में अगर हुआ तो टेंस प्लेस पे 0, अगर यूनिट्स प्लेस पे हुआ तो यूनिट्स प्लेस के प्लेट्स के नंबर पे आप 0 लिखोगे, बराबर। फिर मल्टीप्लायर में थर्ड अगर यहाँ पर ब्लैक हुआ तो आप लिखोगे 10⁻�0। और टॉलरेंस में फोर्थ बैंड जो है वो कभी भी ब्लैक नहीं होगा। ब्लैक, फिर ब्राउन, ब्राउन में 1 10⁻1, टॉलरेंस में भी ये नहीं होगा। फिर आएगा रेड 2 10⁻2, मतलब कि रेड कलर यहाँ पर या यहाँ पर है तो टेंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस या मल्टीप्लायर में आप 2 या तो 10⁻2 लिखोगे, बराबर। फिर ऑरेंज 3 10⁻3, देन येलो 4 10⁻4, ग्रीन 5 10⁻5, ब्लू 6 10⁻6, violet 7 10⁻7, gray 8 10⁻8, white 9 10⁻9, gold, silver और नो कलर 10 10⁻10। ये जो है वो यहाँ पर नहीं होंगे, इधर टॉलरेंस में 10 ±5%, सिल्वर अगर हुआ तो ±10%, या नो कलर हुआ तो ±20%। मतलब कि फोर्थ बैंड इनमें से कुछ हो सकता है, या तो गोल्डन होगा या तो सिल्वर होगा या तो फोर्थ बैंड होगा ही नहीं। अगर गोल्डन हुआ फोर्थ बैंड तो आप लिखोगे ± में यहाँ पर 5%। अगर फोर्थ बैंड सिल्वर हुआ तो आप लिखोगे 10%। अगर कोई भी कलर नहीं है, खाली 3 बैंड ही दिया, फोर्थ बैंड है ही नहीं, मतलब कि नो कलर, तो ±20% ये लिखोगे आप, बराबर। तो अब ये जो है ये तो मुझे तो याद था, बराबर, इसलिए मैंने पूरा लिख लिया, बराबर। आप लोग ये याद कैसे रखोगे, तो ये याद रखने की एक टेक्निक है। बी रॉय goes to बॉम्बे वाया गेटवे टेकिंग गोल्ड सिल्वर नो कलर, बराबर। बी रॉय याद रहेगा, बी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे गोल्ड सिल्वर नो कलर, ठीक है। बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक, ब्लैक से स्टार्ट करना है, फिर उसमें ब्लू या ब्राउन मत कर देना, बराबर। ब्लैक मतलब सब कलर्स उसमें एब्जॉर्ब हो गए, कुछ नहीं बचा, बराबर, बाहर कुछ एब्जॉर्ब नहीं किया तो 0, इसलिए ऐसे याद रखना, ब्लैक होल, कुछ बाहर नहीं, 0। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। बी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेट वे, ठीक है, याद रहेगा। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। सपोज कि ये फर्स्ट बैंड जो है वो ग्रीन है, आपको ऐसे दिया ग्रीन, फिर ब्लू बैंड दिया, फिर ब्लैक बैंड दिया, या तो ब्राउन ले लेते हैं, ब्राउन बैंड दिया, एंड फिर सिल्वर दिया। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? फर्स्ट ग्रीन के सामने क्या है? ग्रीन के सामने यूनिट्स प्लेस में, टेंस प्लेस में 5 लिखोगे। फर्स्ट बैंड ग्रीन है। फिर सेकंड बैंड कौन से कलर का है? ब्लू कलर। तो ब्लू कलर के सामने क्या लिखोगे? यूनिट्स प्लेस में 6 लिखोगे। तो 56 नंबर बना। 56 इंटू ब्राउन कहां पर? उसके सामने मल्टीप्लायर कितना? 10⁻1, बराबर, मतलब 10 प्लस और माइनस सिल्वर के लिए कितना? प्लस और माइनस 10%, तो 10। इतने ओम इसका रेजिस्टेंस हुआ। 56 इंटू 10 प्लस और माइनस 10% ओम, ठीक है। इसको आपको
टेबल जो है एक बार रफ में लिख के फिर या तो फिर याद से ऐसे रख, बी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया 0 1 2 3, पूरा लिखना ना हो तो आप ऐसे कर सकते हो हाथ के ऊपर, बराबर। तो ये बनेगा। इसमें अभी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकते हैं, बराबर, कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो मैक्सिमम मतलब आर मैक्स मतलब उसमें ये टॉलरेंस जो है वो ऐड करोगे प्लस 10% ऑफ दिस, 10% ऑफ 560, बराबर। और आर मिनिमम जो फाइंड करना है वो आर मिनिमम आएगा 560 माइनस 10% ऑफ 560, बराबर। ऐसे आप लोगों को दो वैल्यूज जो है वो मिलेगी। तो एक तो आपको डायरेक्टली ऐसे नंबर दिया होगा और ओम में है, किलो ओम में, वो एक खास लिख लेना कि आंसर जो है वो किलो ओम में अगर पूछा है। और आपको साथ में ऑरेंज नंबर दिया है, ऑरेंज कलर थर्ड बैंड में दिया है, तो फिर यहाँ पर 10⁻³ नहीं लिखना है, वो खास ध्यान रखना, गलती मत कर देना, ये मिस्टेक जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। सेकेंडली आर मैक्स आर मिनिमम है तो उसमें ये 560 करके 560 भी ऑप्शन होगा तो वो लिख कर नहीं आना है। मैक्सिमम मतलब उसमें टॉलरेंस जो है वो ऐड करना है, मिनिमम टॉलरेंस माइनस करना है उसमें से, बराबर। तो ये कलर बैंड के ऊपर से कार्बन रेजिस्टर तो इतना छोटा होगा, उसके ऊपर भी ये नंबर जो है वो इनडायरेक्टली लिख दिया, और कलर के बैंड तो इजीली कोई भी देख पाएगा। तो कितने रेजिस्टेंस वाला वो कार्बन रेजिस्टर है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये नोट करो। So here we come to the end of this lecture, and in the next lecture we will see the combination of resistors, series and parallel combination.